जो इंसान इमोशनल होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है. मतलब इमोशंस मेक यू डम, बट द होल पॉइंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज इमोशंस इंटेलिजेंटली, and that can only happen through better understanding of those emotions. Actually, for the brain's survival and for a humankind survival, it's the unpleasant or the negative emotions which are much more important for us. But अब तो जंगलों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बॉस के सामने बैठा हूँ और वो मेरी इंटरव्यू ले रहा है, वो डिसाइड करेगा मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है. यहाँ पे मुझे डर हो रहा है, बिकॉज इवन दो इट इज़ नॉट अबाउट रियली सर्वाइवल, बट इट इज़ अबाउट माई आइडेंटिटी. What are open marriages and why are people opting for open marriages? Open marriages. Men in dating are emotionally unavailable. But I want to ask you, are women also emotionally unavailable? 100%. Just because women are emotionally expressive or better expressive than men doesn't mean that emotionally available. Especially in today's world, today's dating scene, a lot of people operate from the fear of rejection and the fear of heartbreak and the fear of abandonment, which makes them do a lot of things. The only thing that makes a relationship work or healthy is the ऐसा क्यों होता है जो हमारे सबसे करीबी होते हैं उनके साथ ओनली वी लूज कंट्रोल, एंड ऐसा भी होता है वी ऑल फेस दिस दैट हम सेम इमोशनल पैटर्न्स रिलेशनशिप्स में रिपीट करते रहते हैं. This and a lot more questions regarding our emotions and relationships is what I wanted to explore in today's podcast. So join me in welcoming Shivam. Thank you so much for having me. Shivam is a well-renowned emotional intelligence coach, and he has helped thousands discover themselves better, have a better relationship with themselves as well as those around you. So thank you, Shivam. I'm so glad you took out your time to come to the Sangam project. Really excited to have the conversation. Great. So Shivam, before we start the podcast, मैं अपने guest से पूछती हूँ to set an intention. What is your intention for the conversation we're about to have? I think the whole idea, जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की और any such conversations, the whole idea revolves around having a better clarity of who we are. And I think this is something जो हमेशा मुझे drive करा है as a person, the curiosity. And this is something I like a lot, curiosity. And this is something I feel we miss a lot as a society. Yeah. The curiosity to ask questions. The curiosity to know a bit about yourself, curiosity to understand and ask deeper questions to get deeper answers. And since very often we like to rush into things, we like to run for things, we like to chase things, the very basic essence of curiosity and getting to know yourself goes for a toss. And I think I hope through this conversation हम वो curiosity को touch upon कर सके यहाँ पे, to help people understand themselves a bit better, to help people understand their emotions a bit better. Because this is something I realized काफ़ी पहले कि a lot of people suffer because of lack of understanding about themselves. Yes. Self-awareness नहीं होती. हाँ, बिल्कुल राइट. एंड जब होता है उनके साथ कुछ गलत, अच्छा, बुरा, कुछ भी, तो हम उसमें एक मैजिक के इंग्रेडिएंट को ऐड कर देते हैं कि अच्छा हो रहा है तो मैजिकल हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मैजिकल हो रहा है. बट मोर देन मैजिकल, इट्स ऑफन मैथमेटिकल. Okay. And the moment you understand that mathematics behind everything that goes around it, Lovely. the life becomes a bit easier to handle. Okay. So I think that's the whole essence that I would want to touch upon. This is such a beautiful intention. I hope it reaches many, many people and we can help them understand themselves and their emotions better. I want to start by asking you कि emotional intelligence का मतलब होता क्या है? Right. I think जब हम दो टर्म को ये बात करते हैं, emotions and intelligence, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम साथ में इंडिपेंडेंटली कभी यूज़ नहीं करते. क्योंकि हम क्या कहते हैं नॉर्मली, जो इंसान इमोशनल होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है. हाँ. मतलब इमोशंस मेक यू डम्प, दैट्स व्हाट वी ऑफन से एंड टॉक अबाउट. That is what we're taught. दैट्स व्हाट वी आर टॉट, राइट. एंड सोसाइटी में ये बात बहुत ही प्रेवलेंट घूमती रहती है. बट द होल पॉइंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज इमोशंस इंटेलिजेंटली, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज इमोशंस. कि इमोशंस आ कहाँ से रहे, व्हाट आर वी रियली फीलिंग, व्हाई आर वी फीलिंग समथिंग. इनफैक्ट हम जब बात करते हैं इमोशंस की तो हम बात करना चाहते हैं पॉजिटिव इमोशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा. Correct. बट एक्चुअली फॉर द ब्रेन सर्वाइवल एंड फॉर अ ह्यूमन काइंड सर्वाइवल, it's the unpleasant or the negative emotions which are much more important for us. Okay. They're much more important for our survival, they're much more important for our growth. And when you say negative emotions,
Which are the ones? the unpleasant emotions like anxiety, fear, anger, shame, guilt, ये सारे unpleasant emotions है जो हमें बहुत unpleasant feel कराते हैं खुद के बारे में, and they actually are much more important for you than the positive and pleasant ones. Why is that? हाँ, why is that? Because the humankind, हम जंगलों में रहते थे पहले, we've evolved to become who we are today, and जंगलों से निकलने के लिए हमारे लिए सबसे important क्या था? Survival. This instinctive survival instinct. Yes. ये अगर हमारे अंदर नहीं होता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, जब हम जंगल में हैं एंड हमारे सामने लेट्स से आई एम अ पर्सन हियर एंड देयर इज अ लायन इन फ्रंट ऑफ मी, मैं एक इंसान हूँ, एक शेर मेरे सामने है. नाउ व्हाट वुड एग्जैक्टली बी द स्पेक्ट्रम देयर? एक इंसान एक शेर, कौन जीतेगा? शेर जीतेगा. अब जब हम बात करते हैं आज के डेट पे भी, तो अनप्लेजेंट इमोशंस सेम फॉर्म में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सामने से शेर को देखता हूँ अपने, तो मेरे अंदर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या आएगा? डर. आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द प्लेस. मेरे सामने शेर आता है, उस पॉइंट पे मैं लॉजिकली नहीं सोच पाऊंगा. इन फैक्ट इफ आई वुड थिंक लॉजिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड बी किल्ड इन अ मोमेंट. शेर को देखते ही जब मेरा इंस्टिंक्टिवली डर आएगा, तो बिना सोचे बिना समझे मैं भागूंगा वहां से. करेक्ट. एंड दैट इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिव रिएक्शन विल एक्चुअली सेव माई लाइफ. Correct. That is what survival is. Yeah. And that is what unpleasant emotions do to us. हाँ. जब हम unpleasant emotions की बात करते हैं तो बात करते हैं impulsivity की भी. कि यही होता है ना, गुस्सा, impulsive. We react, we act, we shout. Correct. Impulsive. Correct. Fear, again impulsive. We go into a shell. We just we take impulsive reactions. Anxiety, again, we just go down, avoid things, just get into a very uncertain space. तो हर एक unpleasant emotions are very impulsive in general. And why are they very impulsive? Because they are much more important for our survival. Okay. तो अब हम जंगलों से बाहर तो निकल गए. लाइक आई मेंशन कि अगर मैं जंगल में हूँ और शेर मेरे सामने आता है, वो इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिव रिएक्शन इज सेविंग माई लाइफ. बट अब तो जंगलों से बाहर निकल चुके. लेकिन फिर भी मैं अपने बॉस के सामने बैठा हूँ और वो मेरी इंटरव्यू ले रहा है, वो डिसाइड करेगा मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है. यहाँ पे मुझे डर हो रहा है. बिकॉज इवन दो इट इज नॉट अबाउट रियली सर्वाइवल, बट इट इज अबाउट माई आइडेंटिटी, इट इज अबाउट माई ग्रोथ, इट इज अबाउट माई फ्यूचर. तो द सेम इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ऑफ फियर किक्स इन. उसे डर में क्या होगा? सिमिलर चीज़ मैं अवॉइड करूँगा उस सिचुएशन को, मैं भागना चाहूँगा सिचुएशन से. एंड ये नॉर्मली हम नोटिस करते हैं काफ़ी बार कि जब हम डरे हुए होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत चेंजेस आते हैं. हमारी हार्ट बीट चेंज होने लग जाती है, एक चेस्ट में हेवीनेस सा फील होने लग जाता है. We avoid that conversation altogether. We don't want to be in that conversation. We rush through conversation. जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं ताकि हम जल्दी से ख़त्म कर ले उस काम को. तो नेचुरल सेंस में अब देखा जाए तो इमोशंस आज भी हमें सेम चीज़ करा रहा है. बट वो कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि फॉर मी दिस इंटरव्यू दैट आई एम हैविंग विद माय बॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल डिफाइन अ बिग कोर्स ऑफ माई लाइफ. And that is why this instinctive emotion is coming into the picture to help me guide through that or navigate through that. Now, what does most of the people do? उस instinctive reaction को अपने ऊपर हावी होने देंगे और उस पर रिएक्ट करते रहेंगे बार बार. फॉर एग्जाम्पल, मैं डर चुका हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कोई नहीं, मुझे मीटिंग में जाना ही नहीं है, मुझे इंटरव्यू में जाना ही नहीं, अवॉइड करना चालू करेंगे. तो एक्चुअली हमने क्या करा, हमने इमोशंस को आने तो दिया, बट हमने इमोशंस को फील नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया. हम इमोशंस से भागना चालू करें बिकॉज इट वुड फील अनप्लेजेंट टू अस. So, but I want to ask you here that even in my experience, you know, जैसे negative emotions, especially like you said, anxiety or a lot of guilt and regret, for the longest time growing up, I would suppress them. एक तो हमें सिखाया भी जाता है ना कि मत सोचो, बुरा लग रहा है, कुछ और बाहर चले जाओ. So it was literally like you suppress so-called negative emotions, but actually I read a few years ago, what you actually suppress वो और grow होता है. And that's when that emotion becomes unbearable. Yes. So how can we actually process so-called negative emotions better? Right. I think that is exactly the main point here कि जब हम unpleasant emotion की बात करते हो तो why I was talking about this unpleasant emotion is primarily because we need first awareness कि वो unpleasant feel हो रहा है, but unpleasant is still more important for you. Yeah. So first thing, do not run away from them. Okay. It is still unpleasant. I mean, obviously, fear is going to make you feel uncomfortable. Yeah. Anxiety is going to make you feel uncomfortable. Yeah. बट फर्स्ट लेट्स बी ऑब्जर्वेंट ऑफ द फैक्ट कि वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे. लाइक आई मेंशन कि मैं अगर बैठा हुआ इंटरव्यू में अपने बॉस के सामने एंड
मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो जब मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा मेरा बेसिक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होगा निकल जाओ वहाँ से, अवॉइड करो, कोई बात नहीं, नहीं लगाओ इंक्रीमेंट ना, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अवॉइडिंग द एंड रिजल्ट, आई एम अवॉइडिंग द फीलिंग एसोसिएटेड विद इट. तो मैं अवॉइडेंस में चला जाऊंगा या इग्नोरेंस में चला जाऊंगा या अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा. बट आई एड्रेस द फीलिंग, ओके आई एम फीलिंग एंक्शियस बिकॉज आई हैव एन इंटरव्यू विद माई बॉस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन माई फ्यूचर कोर्स ऑफ वर्क. इट्स नेचुरल फॉर मी टू फील एंक्शियस. I tell it to myself कि it's okay. I mean, obviously, बड़ा कुछ चेंज होने वाला लाइफ में, तो it's natural for me to feel anxious. I do not know what is going to happen. And then what will I do? I'll observe the feeling, understand the feeling, and maybe plan for that interview, plan for that meeting. कि अच्छा ये questions पूछ सकते, मैं ऐसे आंसर करूँगा. तो I'll do a bit of planning around that unpleasant feeling. The more I do that planning, the more I feel comfortable with that thing. Okay. And when the thing actually happens, I'm still going to feel uncomfortable because it's a big face-to-face thing. But still, because I'm a bit more prepared now, तो थोड़ी एंग्जाइटी कम हो गई मेरी और थोड़ा डर भी कम हो गया मेरा. एंड मैंने एक्चुअली बेटर प्रिपरेशन के साथ उसको डील करना बेटर तरीके से सीखा. रिजल्ट क्या आया, नॉट ऑलवेज गारंटीड, बट एटलीस्ट आई लर्न बेटर वे टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो यही बात आती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी अनप्लेजेंट इमोशन की, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग what are we really trying to run away from? Yeah. Are we trying to run away from the emotion, or are we trying to run away from the condition or the feeling it brings to us? किस तरीके से हमें वो फील करा रहा है. जितना वो अनकंफर्टेबल होगा उतना ज़्यादा हम वहाँ से भागना चाहेंगे. इट्स वेरी सिंपली पुट. Absolutely. राइट. तो वही अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम पहले ओके अनप्लेजेंट इमोशन को समझते, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस. Secondly, processing happens in various ways. Like the question that you asked, that how do we really process our unpleasant emotions? Now, processing can happen in various ways. Some people process through talking. Okay. Some people process through writing. Some people process through internal introspection and questioning and challenging. Some people even process through walking. Because you might have noticed this thing कि हम जितना काफ़ी बार walk पे निकलते, लंबी walk पे निकलते, and then mind becomes very clear after a walk. Yeah. Because again, Yeah. internally processing चल रहा है उधर के बाद. Some people process through cooking. Okay. It's a personal space for you, right? हाँ, आप कुक कर रहे हो, सोच रहे हो, कुक कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ चीज़ Yeah. सॉल्व हो रही है. Some people process through sports. Yeah. Find your ways and make sure that you have your time for yourself every day for that. Because at the end of the day, we need to understand this thing on an every day-to-day basis. There are 1,000 things happening with us. 1,000 चीज़ें हो रही है हमारे साथ हर दिन पे. Absolutely. एंड आप नोटिस करते हो कि आप ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, बच्चों के साथ होती है, हमारे साथ होती है, कि ऑन अ वेरी इवेंटफुल डे, let's say you had a very eventful day, you had been to parties and events and talking to lots of people, and then you even come back home, बहुत late night को आप घर पे आते हो, you're tired, physically very tired. Yeah. But the moment you sit on the bed, आप सोने जाते हो बेड पे, आपको नींद नहीं आती है. Too many thoughts. Too many thoughts. So what exactly happened with you? Overstimulation. हाँ. You're overstimulated because your brain has so many thoughts, so many things over-collected during the course of the day that has not been processed yet. Yes. What do you need to do at that point of time? Process those feelings. Talk about it. Maybe give yourself some time to process that feeling and Yeah. thought about it. अगर आप वो process नहीं करोगे तो build-up होना चालू होगा and it will come out in other forms. So dreams में आएंगे कुछ चीज़ें, behaviors में कुछ That's चीज़ें आएंगी, true. अंदर दबती रहेंगी चीज़ें. एंड ये बातें हम जनरली बच्चों के साथ बहुत बोलते हैं कि बच्चे ओवर स्टिमुलेट हो गए तो बच्चों को टीवी मत दिखाओ. ये बात क्यों बोलते हैं? बच्चों को टीवी नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को इतने शोज नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए. हाँ. बिकॉज वो सेम रीजन कि बच्चे ओवर स्टिमुलेट होते हैं. Correct. बट हम भी तो होते हैं. Yeah. We just don't care about Yeah, ourselves. we just don't, we're not aware, Yes, like you yes, said. right. One thing I do, हर रोज नहीं हो पाता, but at least try doing it a few times a week, is what I call a release journal. So I just put on my music and I just write unfiltered. किसी से कुछ बोल नहीं सकते, जो लिखना है unfiltered, just release it on the page, and it actually calms you down instantly. Right. It absolutely helps. Writing is one of the most beautiful ways of processing your emotions, because it kind of gives you a bit of third person perspective to the entire picture as well. बोलने में फिर भी आपका एक बायस के साथ आप बात करते हो. हाँ. लिखने में वो बायस थोड़ा पीछे हो जाता है. Yeah, क्योंकि कोई है ही नहीं देखने के लिए. राइट. एंड मतलब आप लिखते लिखते भी दो बार प्रोसेस कर रहे हो चीज़ों को ना. Exactly. सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू डेफिनेटली. So, जब आप वो सिचुएशन में हो, इंटेंस सिचुएशन में, what are 3 practical tools you can use to manage your anger from escalating? राइट. आई थिंक ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं ना कि एंगर बहुत जल्दी आ जाता है या बहुत एक्सट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ जाता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. कोई भी इमोशन एक्सट्रीम तरीके से तभी आता है जब एक्चुअली में कोई थ्रेट हो हमारे सामने. थ्रेट इन द सेंस शेर सच में आ गया हो.
ये सच में हम इंटरव्यू में चले गए हो, सच में हम ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पर बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड पहुँच गए. Unless and until that is not happening, we are not going to get extremity of that particular thing. But I'll tell you क्यों एंगर इतना जल्दी क्यों आता है, इतना एक्सट्रीम पे क्यों आता है. एंगर उतनी एक्सट्रीम पे इसलिए आता है बिकॉज हम हमें आदत हो चुकी है अपनी नीड्स को सप्रेस करने की. सो लेट्स से आई एम सिटिंग विथ यू एंड यू मीट मी टुडे एंड देन आई एम रूड टू यू इन सर्टेन वेज. कुछ तरीके से मैंने बात रूड तरीके से करी आपसे, बट अगेन क्या ही बोलो, मतलब आप पहली बार मिल रहे हो तो यार जस्ट लेटिंग इट गो कि ठीक है छोड़ दो यार, क्या ही बोलना. अगेन आई मीट यू टुमारो, अगेन आई शो दैट सेम बिहेवियर टू यू, मतलब थोड़ा बहुत पैसिव अग्रेसिव एंड थोड़ा रूड बिहेवियर. आप फिर भी कल भी छोड़ देते हो, 3 दिन बाद छोड़ देते हो, 4 दिन बाद छोड़ देते हो, 5 दिन बाद छोड़ देते हो. आफ्टर 10-12 days मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ आपको, हाय हाउ यू, एंड उस बात पे आप मुझ पर चिल्लाना चालू कर देते हो कि वाई आस्किंग दिस क्वेश्चन, सच अ बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन. सो एक्चुअल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने पहले का प्रोसेस Exactly. नहीं किया. वो 10-12 दिन का जो गुस्सा बिल्डअप हो रहा था वो आज 13वें दिन निकल रहा है. सो ऑल ऑफ दैट इज इन पाइल्ड अप. सो ऑल्दो यू माइट से कि अच्छा आपने ये बोला तो मैं ट्रिगर हो गई, बट दैट वाज नॉट द ट्रिगर. Trigger, yes, you found the trigger through which all the unprocessed emotions came out. Yeah. But it was building up through that extremities for since very long. And आज उसको बस मौका मिल गया बाहर निकलने का. जब निकला तो सब कुछ साथ निकल रहा है. उभर के. And that is where it becomes strong. Same thing कार की बात जब हम करते हैं कि इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कि कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई हॉन्ग कर रहा है तो गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर. वो भी लग रहा है कि अच्छा वो तो बहुत इमीडिएट हो रहा है, वहाँ तो हम कहाँ उस इंसान पे गुस्सा, हम पहली बार मिल रहे उस इंसान से. बट रियलिटी में ये आप नोटिस करो कि जितनी हमारी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ होती है उतना ज़्यादा हमें बाकियों पे गुस्सा आता है. कि मेरे मान लो मेरे ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं वहाँ गाली सुन के आ रहा हूँ, घर पे सही नहीं चल रहा है, घर पे भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, और फिर मैं कार ड्राइव पे निकलता हूँ. अब मैं अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, सैडनेस को, फियर को, एंग्जाइटी को, एंगर को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बॉस को तो कुछ नहीं बोल सकता. अब वो जो ट्रीट कर रहा है सो कर रहा है. घर पे कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज लड़ाई होगी, कलेश होगा फिर. तो वो अंदर वेंटेड अप, पाइल्ड अप थिंग कहाँ जाएगा वो सारा चीज़. रोड रेज. एंड दिस इज व्हाट यू सी. रोड रेज में जितने लोग निकलते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ के साथ निकलते हैं, वो क्या छुपाना चाह रहे हैं. दे आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन द वेरी बेसिक एसेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी. Okay. They are losing out on the insecurity. They're very insecure internally. They feel powerless. So you're saying road rage is mostly men? Mostly men. I mean, you see that. I mean, that's what data says, right? Road rage is mostly driven by men. Okay. And for the very prime reason, they often feel this particular thing कि I'm being suppressed. और मेरा power नहीं, मेरी authority नहीं. And वो गुस्सा इस बात पे ही आता है. Yeah. Majority of the people get road rage because उनको लगता है कि यार मुझे क्या समझा भाई, तुमने मेरी गाड़ी को ठोका कैसे. मतलब मैं कोई बेवकूफ़ हूँ क्या, मैं तू जानता नहीं मेरे बाप कौन है. कि वो बातें कहाँ से आ रही है. बिकॉज आई फील दैट यू आर थिंकिंग दैट आई एम पावरलेस. एंड वाई आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, दैट वाई डू यू थिंक आई एम पावरलेस, बिकॉज समहाउ आई फील इंटरनली दैट आई एम पावरलेस. Okay. And various other ways of life, in my professional life, in my personal life, I always feel powerless. Yeah. How do I showcase that power? कहाँ निकलेगा वो powerless? As a man. राइट. हाँ, तो वो पावरलेस वाली फीलिंग इतनी मुझे अंदर परेशान कर रही है कि मुझे एक एस्केप चाहिए उस बाहर निकालने का, टू फील पावरफुल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. रोड रेज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज यू कैन टेक आउट द पावर. That's amazing. मैंने एक मई में मेंस मेंटल हेल्थ एपिसोड किया था विद अ थेरेपिस्ट एंड वी स्पोक अ लॉट अबाउट दिस, दैट हम अपने लड़कों को तो सिखाते ही नहीं है टू डील विद देयर इमोशंस. Yes. And that's exactly what you're saying, that those emotions become then extreme. Absolutely. Because when we don't teach them how to regulate them properly. But now I want to move specifically to relationships. And, and I feel this is universal, men, women, tell me your opinion on it, कि why is it कि जो हमारे एक्चुअली सबसे क्लोज्ड वंस होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, उन्हीं के साथ वी रिएक्ट मोस्ट अग्रेसिवली. वहाँ भी सेम रीज़न है ना कि जब हम किसी के साथ अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट, हाँ, तो देर आर गुड पार्ट्स ऑफ अटैचमेंट एंड देर आर बैड पार्ट्स ऑफ अटैचमेंट. ओके. मतलब यू फाइंड द प्रोज ऑफ अटैचमेंट, यू गेट द कॉन्स ऑफ अटैचमेंट एज वेल. जैसे सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो जब हम किसी के साथ अपना सबसे प्यार वाला बिहेवियर दिखा रहे हैं तो उसके सामने बाकी वो बिहेवियर भी निकल के आएगा, एक्सट्रीम वाला बिहेवियर निकल कर आएगा. बट वो एक्सट्रीम बिहेवियर क्यों निकल के आता है? बिकॉज अगेन हम जब किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो एवरी रिलेशनशिप इज मेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज. ओके. देयर इज नो पॉसिबल रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो कुछ. या. बट
जितना ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ अंदर दबा हुआ है, जितना वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कम्युनिकेटेड नहीं हो, जितना वो कॉम्प्रोमाइज़ वन साइडेड लग रहा है, उतना ज़्यादा वो गुस्सा निकल कर आएगा एक्सट्रीमिटीज़ में. इन एक्चुअली हेल्दी रिलेशनशिप्स एज वेल, लड़ाइयाँ सब रिलेशनशिप्स में होती है, बट इन जेन्युइन हेल्दी रिलेशनशिप्स दोज एक्सट्रीमिटीज़ आर वेरी 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 रेयर. ओके. बिकॉज आपको एक बात पर स्टेबिलिटी आ जाती है एक पॉइंट के बाद कि आपको समझ में आ रहा है कि ओके आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग बट सो इज माई पार्टनर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग. I have to suppress my needs for some areas, but my partner is also suppressing their needs for some areas. तो एक empathy है, एक understanding है उस बात को लेकर. But if you think that I am the only one who is actually suppressing everything, I am the only one who is only compromising, my partner को तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो तो मजे की जिंदगी जी रहा है, तो आपका resentment तो बढ़ता रहेगा एंड वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो वो गुस्से में एक्सट्रीमिटीज़ में निकलेगा वो सारी चीज़ें. तो वो तब निकलता है जब हमारे अंदर वो गैप बढ़ना चालू हो जाता है कि दैट जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं वो अनइक्वल है. जितना अनइक्वल कॉम्प्रोमाइज़ उतना ज़्यादा रिजेंटमेंट, उतना ज़्यादा गुस्सा इस एक्सट्रीम फॉर्म में निकलेगा. जितना वो बैलेंस्ड दिखेगा उतना चीज़ें बेटर होंगी, बट बैलेंस्ड होने के लिए एफर्ट सिर्फ दोनों साइड से होना चाहिए, एक पर्सन तो नहीं कर सकता वो चीज़. True, true. So we touched on क्यों trigger होता है, but again अगर हो गया and we have reached a situation where that anger and that resentment has built up, what are some tools we can use to not react in the situation? Right, ठीक है. Just like I first initially said as well कि पहले तो हम अपना ऑब्जर्वेंट एंड अवेयर होना चालू हो जाए कि मैं अपनी नीड्स को सप्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा गुस्सा बिल्डअप होना चालू हो रहा है, ताकि वो एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुँचे ही ना. बिकॉज वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई इमोशन उस एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुँच जाएगी तो देयर इज नथिंग यू कैन पॉसिबली डू टू हैंडल दैट बेटर. ओके. बिकॉज आपने 15-20 दिन तक दबा के रख लिया उस चीज़ को, वो निकलेगा एक्सट्रीमिटीज़ पे. द बेस्ट वे टू हैंडल एन एंगर इज एट द 10th day or the 8th day or the 7th day or the 6th day. Be so much aware about your body and the mind कि what is it trying to tell you, because your body is constantly sending you signs through its body language कि this is what you're feeling. हम इग्नोर कर देते conveniently because we're always running. तो आज मैं आपसे, जैसे मैंने बात की, मैंने आपसे मिलता हूँ और मैं आपके साथ रूड बिहेव करता हूँ, you would still feel uncomfortable today. But if you observe the signs कि okay, I was feeling bit uncomfortable with him today, and that is why I could not open up properly, that is why I could not set very nicely with him, that is why I avoided him eventually, that is why I went out जल्दी. तो आप जब उस सिग्नल्स को पकड़ना चालू करो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा मे बी ही डिड समथिंग जिस कारण से मुझे फील हुआ. आप यू नॉट जंपिंग द गन्स राइट नाउ कि मे बी दिस पर्सन इज बैड और हॉरिबल और गुड वॉट एवर, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि ये हुआ था मेरे साथ. यू आर टेकिंग नोट. यस, यू आर टेकिंग नोट्स फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू. तो ये जब ऑब्जर्वेशन रहेगा ना, तो आप इसको उतना बिल्डअप नहीं होने दोगे. आपका एक्शन जल्दी आएगा, 2-3-4 इवेंट्स के बाद आ जाएगा. ओके. और जब 2-4-3 इवेंट्स के बाद आ जाएगा तो नेचुरली उस पॉइंट पे उस एक्सट्रीमिटीज़ में गुस्सा भी नहीं निकलेगा. Correct. क्योंकि 15वें दिन जो निकल रहा है वो आपका कॉन्शियस चॉइस भी नहीं हो रहा है, वो तो सबकॉन्शियसली निकल रहा है. यू आर नॉट चूजिंग टू गेट एंग्री, इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, जब बात आती है गुस्से की, तो हम गुस्से मान लो हो भी गया, चलो लेट्स अज्यूम कि चलो निकल गया आज गुस्सा मुझसे, बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में गुस्सा निकल गया. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि गुस्सा, एंगर ऑलवेज इज फॉलोड बाई गिल्ट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मान लो चलो आज मैंने आपको गंदे से ट्रीट किया 15 दिन आप मेरे हेलो बोलने पे आपने मुझे गुस्सा से चिल्ला दिया. अब आपको लग रहा है इवेंचुअली आप गुस्सा करने के बाद कि यार इसने तो हेलो ही बोला था, मैं इतना गुस्सा क्यों हो गई. सो यू स्टार्ट टू फील गिल्टी. एंड जब आप गिल्टी फील करोगे तो क्या होगा, यू विल अगेन स्टार्ट सप्रेसिंग योर नीड्स. तो अगले 15 दिन तक फिर से मैं वही ट्रीटमेंट बिहेवियर निकल कर ला रहा हूँ. करेक्ट. एंड देन फिर आप इग्नोर कर रहे हो और फिर से वो गुस्सा बाहर निकल के आ रहा है. सो इट बिकम्स अ रेपिटेटिव पैटर्न. So one thing we need to understand is that if your extremities of emotion is coming out, especially through anger, understand that it came out because of reason. It did not come out of nowhere. कुछ तो पर्पस था ना, कुछ तो रीजन था उस एंगर का. हवा में तो गुस्सा नहीं आया आपको, उसको सॉल्व कुछ तो फील हुआ आपका. To solve that problem, that means if it takes for you to communicate to me कि sorry, I don't like the way you talk to me. It's as simple as that. Of course, maybe उस वक्त नहीं बताओ. अगर आपको लग रहा है कि मैं उस वक्त बहुत गंदे से बात करूँगी, don't do that. But after an hour, after a day or two, message the person, talk to the person, call the person and tell them कि okay, I agree to the fact that maybe शायद मेरे एक्सट्रीमिटी में गुस्सा निकल गया, which was not probably right, but this is the way I've been feeling in the last couple of days or times, and I would want कि शायद आप ये चीज़ improve better कर दो, because at least I'm addressing the core problem here. Normally हम वही काम नहीं करते. हम because जो आपने क्वेश्चन में पूछा ना, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अपने गुस्से को शांत कैसे करें. बट गुस्से को शांत करना इज नॉट द सोल्यूशन.
गुस्सा आ ही रहा था एक पर्पस के साथ. True. गुस्से को एड्रेस करना इज अ सोल्यूशन. एड्रेस Yeah. व्हाट मेड यू एंग्री Correct. एंड देन गेट टू द रूट कॉज एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हम गुस्से को पानी पी लिया, चलो आपको हेल्प करेगा, यू ड्रिंक वाटर, इट विल हेल्प यू टू काम आउट दैट एंगर. आप थोड़े डीप ब्रेथ लो, इट विल हेल्प यू टू रिलीज दैट एंगर अ बिट. Yeah. बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आज आपने पानी पी लिया, कल फिर से वो गुस्सा निकल कर आएगा. True. तो Yeah. कितनी बार आप पानी पियोगे? So I think what you're saying is healthy communication is key. बिल्कुल. But in a relationship, the dynamics of masculine and feminine energy interplay होती है. Is it true that men and women in a relationship process emotions differently, or is this something that we are conditioned to believe? इट्स प्योरली कंडीशनिंग. Okay. बायोलॉजिकल बहुत कम डिफरेंस होता है, इमोशंस दोनों के सेम होते हैं. अच्छा. इट्स प्योरली कंडीशनिंग बिकॉज इट स्टार्ट्स वेरी वेरी अर्ली, इन द सेंस कि जब आप छोटे होते हो तो लड़कों को जनरली बोला जाता है लड़कियों की तरह मत रहो, हाँ. लड़कियों की तरह गॉसिप मत करो. एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि गॉसिप मत करो. लड़कियों की तरह को क्या गॉसिप कर रहे हो दोस्तों के साथ बैठकर? हाँ. खेलने जाओ ना. जनानियों की जैसे कैसे बात कर राइट. रहा है. बट व्हाट डज गॉसिपिंग रियली मीन? गॉसिपिंग मीन्स टू टॉक. To Yeah. talk about what the day went like, to talk about what you felt after the particular event, to talk about how you felt after a confrontation or a conversation. So now let's say that I am as a guy, मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरे साथ एक इवेंट होता है स्कूल में, एंड उसको प्रोसेस करने के लिए आई नीड टू शेयर विद समवन, राइट? बट मुझे बोला जा रहा है उस पॉइंट पे कि नहीं, वाई यू टॉक, मतलब क्या फालतू लड़कियों की तरह गॉसिप करने बैठ रहे हो. तो मैं क्या सीखूंगा इवेंचुअली कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, शट द डोर देयर. बात कर दोगे तो तुम लड़की कहलाओगे. So I'll not talk about it. If I'm not talking about it, I'm not processing it. If I'm not processing it, it is gone, submerged. And internally वो मेरे behavior में change लाना चालू कर देता है. It makes me more rigid or resentful or angry or frustrated in certain ways towards a person or whatever. And then it changes completely me who I am as a person. And this is what happens to every man in every of the occurrences as well. Even आज भी होता है. Be it a man or be it a boy. सबके साथ ही होता है. पीपल हैव द सोसाइटल नॉर्म्स अराउंड दीज थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन इन वेरियस वेज. तो आई थिंक यहाँ से चीज़ें चालू होती है कि सप्रेशन बहुत ज़्यादा मेन के अंदर होता है स्पेशली. एंड घूम फिर के बात वहाँ पहुँच जाती है फिर कि मेन को बता दिया जाता है कि आपके लिए 2-3 इमोशंस ही है. बीइंग एंग्री इज स्टिल मैनली थिंग टू डू, राइट? कैरिंग दैट प्राइड फॉर योरसेल्फ इज स्टिल अ मैनली थिंग टू डू. showing your emotion while watching a sports is still a manly thing to do. तो वहाँ मेन फिर भी इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाते हैं. इंडिया मैच हार गई, शिट मैंने बहुत बुरा हुआ, मेरे आज बहुत गलत हो गया. मतलब मार पीटने पे. हाँ, मार पीटने पे चलो. इंडिया पाकिस्तान में लाइक दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. राइट. वहाँ पर इट्स कन्वीनियंट, इट्स परमिसिबल फॉर यू टू शो योर इमोशंस देयर, बट ऑन अदर प्लेसेस नो, यू कैन नॉट. तो वो एक सप्रेस्ड चीज़ है सोसाइटी की तरफ से. बट दैट बीइंग सेड, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज यूनिवर्सल. इट कैन चेंज. अगर आज भी मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहूँ, इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग दैट, I can change that. How? Again, being more observant, understanding, and take out the shame out of it. Because if you understand this thing, men often are carrying a lot of shame for the way they deal with their emotions. अच्छा. कि जैसे अगेन सेम चीज़ ना, कि मैं अगर अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज ये हुआ, और मुझे कोई आके बोलता है क्या जनानियों की तरह बात कर रहे हो, कितना बड़ा शेम है मेरे लिए. You're kind of totally taking away my identity. You're shaming me, right? Yeah. तो वो शेम, मतलब a man is carrying shame everywhere. कितना मैं पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं अच्छा पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं मैन का जो बेसिक इंस्टिंक्टिव चीज़ है टू प्रोवाइड, वो नहीं कर पा रहा हूँ फिर तो. शेम. अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, अगेन हाउ इवन अ मैन. अगर मैं आपको एक, एंड दिस इज समथिंग यू वुड नोटिस एंड ऑब्जर्व दिस एज वेल, कि अगर एज अ वुमन यू आर गिविंग अ जार टू अ मैन कि ये जार खोल के देना, राइट, वो बहुत टाइटली बंद है, तो दे विल गो टू एनी एक्सट्रीम टू ओपन दैट थिंग. क्यों? You want to be your hero. Why? मतलब बिकॉज वो एक इंस्टिंक्टिव दे रहा है, मैनली चीज़ दे रहा है आपको, एंड वो नहीं खोल पाएगा. तो आई फील अशेम्ड ऑफ दैट एज वेल कि शिट यार, मैं तो मैनली नहीं प्रूव कर पाया खुद को. तो अ मैन इज कैरिंग अ लॉट ऑफ शेम, और वो शेम के चक्कर में सप्रेशन कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन हैपनिंग. तो वो चीज़ को अवॉइड करना कि फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि द शेम दैट यू आर कैरिंग इज नॉट रियली जेन्युइन. इट्स सोसाइटल नॉर्म्स विच इज हॉरिबली रॉन्ग, and it hurts you and it harms you more than it is giving you any value. Yeah, and in a relationship dynamic, so a lot of times this is what we hear, right? Men feel that women are getting very emotionally needy. Why are you asking me? Why do you want me to share about my day? But
that is the way women connect. Absolutely. They want to know more about you. So how can a man start doing that if he's not conditioned to? राइट आई थिंक ये समझना भी ज़रूरी है कि अ मैन स्पेशली ये जो चेंज आएगा बात करने वाला वो एक दिन का काम नहीं है. इट विल टेक जनरेशन टू एक्चुअली गेट टू अ पॉइंट Okay. इक्वल टू वुमेन. तो वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, हाँ. नो मैटर हाउ मच यू पुश देम, नो मैटर हाउ मच ग्रेट स्पेस यू आर गिविंग देम, वेरी ओपन वेरी हेल्दी स्पेस यू आर गिविंग देम, नहीं आएगा. Yeah. No matter how emotionally intelligent I am, I cannot express as great as a woman does. I cannot. But doesn't mean that I'm not putting in efforts for the relationship. So for the women, it's also very important to understand कि observe other things as well. कि yes, आपको लग रहा है कि हाँ अगर मेरा मैन मेरे से बहुत सारी चीज़ें खुल के बात कर रहा है तो हाँ दिस पर्सन इज रियली ग्रेट एंड नाइस फॉर मी. बट मे बी अगर वो बात नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए. उसके बाकी चीज़ें भी तो आप असेस करो ना. वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, मे बी शायद वो आपको केयर दिखा रहा है, हेल्प कर रहा है, प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है. दोज आर द वेज द पर्सन इज ट्राइंग टू शोकेस देयर लव फॉर यू. इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट टू अ बैलेंस, अग्रीड. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस एक्सट्रीम पे आप वो एक एक्सट्रीम में. दोनों को बीच में आना जरूरी है. A man has to also understand कि okay, you are there जहाँ पे आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो you need to keep coming to the middle, थोड़ा बात करना चालू करो. And also for the women to understand कि वो पूरा नहीं होगा, आधा ही होगा, but आप भी बीच में जाओ and understand the other parts that they're doing as well. Yeah. If both of them are sitting on the extreme कि तुम बात करो और तुम एफर्ट करो तो कोई मैच नहीं होगा और वो बहुत एक्सट्रीमिटीज पर लड़ाइयाँ होते रहेंगे सिर्फ. So what is the difference? How do men express love and how do women express love? ये तो बहुत ही बायोलॉजिकल जिस तरीके से हमें कंडीशनिंग की गई है कि प्रोवाइडिंग, बीइंग अ प्रोवाइडर, बीइंग अ प्रोटेक्टर इज हाउ मेन वांट टू शोकेस देयर लव. एंड वुमेन के लिए नर्चरिंग, केयरिंग इज व्हाट एग्जैक्टली दे शोकेस देयर लव थ्रू. एक जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना कि व्हेन यू आर लव एज अ वुमेन यू बिकम अ चाइल्ड. यू वांट टू बी अ चाइल्ड, यू वांट टू जस्ट बी योर रॉ सेल्फ, एक जेन्युइन ऑथेंटिक सेल्फ. एंड फॉर अ मैन यू वांट टू प्रोटेक्ट हर, यू वांट टू सिक्योर हर, यू वांट टू सेव गार्ड हर थ्रू एवरीथिंग एल्स. तो एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव चीज़ आ जाती है. बट हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एक्सप्रेशन जो आता है इट कैन बी थ्रू वर्ड्स, इट कैन बी थ्रू एक्शंस, इट कैन बी थ्रू अफर्मेशंस, इट कैन बी थ्रू फिजिकल टच एज वेल. डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस. बट हमें बस ये असेस करना है कि हम बस एक पे फिक्सेटेड ना रहे. ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड इट कि सच में मुझे दिख रहा है ना रिजल्ट, एंड वो दिख जाता है. ऐसा नहीं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कुछ. अगर कोई इंसान एफर्ट कर रहा है वो तो दिख जाएगा. वर्ड्स के थ्रू नहीं तो एफर्ट के थ्रू दिख जाएगा. एफर्ट्स के थ्रू नहीं तो उसके बिहेवियर के थ्रू दिख जाएगा. बट अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली मतलब हम खुद को कॉम्प्लिकेट भी ना करें, कंफ्यूज भी ना करें कि शायद वो वर्ड्स नहीं बोल रहा है, शायद फिर भी कर रहा है. इट शोज अप. यू कैन मतलब एवरीवन इज सो इतना स्मार्ट है हम लोग कि समझ पाएंगे कि दिस एफर्ट आ रहा है नहीं आ रहा, समझ पाए इस चीज़ को बेटर तरीके से. A little bit about dating, I want to touch a couple of questions. कि सबसे पहले तो I want to ask you कि when it comes to expressing and taking that step of saying I love you, is it men who take that first step or women? Most often men. Okay. Most often men, I'll tell you why. Is because जब हम बात करते हैं ना काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि men are more logical and than women, and men are more logical in love as well compared to women. That is actually wrong. Women are more logical than men in love. Okay. आप पूछो किसी लड़के से what do you want in a woman? What will they often answer? They don't have a list. A man will say, I want good looks. I want her to be of this height, to look in this in a particular way. Ask a woman, what do you want in a man? They have a list. Yeah. कि ये चाहिए, 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 ऐसे बात होना चाहिए, ऐसे डिस्कस करना चाहिए, ऐसे शेयरिंग होनी चाहिए, ऐसे एफर्ट्स होना चाहिए. Which means, and another thing, a woman will take her own sweet time to observe that person. A man might still say कि अच्छा I like this person, अब मुझे love at first sight हो चुका है, अब तो यही this is it. But what do you know about that woman to tell this particular thing that you're in love with her? What do you know? I mean, apart from her looks, what do you know about that woman? That she is the right partner for you. You do not know anything. मतलब impulsively यहाँ कौन जंप कर रहा है? Man. और जहाँ impulsivity आ गई वहाँ emotion तो आ गया ना. Women, most of the women take a lot of sweet time to understand and get to the point कि if this person is right for me or not. Okay. But problem कहाँ आ जाती है फिर? Problem ये आ जाती है कि this is something that people have observed and understood as well. कि a lot of men today, especially in the today's dating scenario, a lot of men have realized this thing, what do I need to say and what do I need to do to kind of love bomb women into feeling in love with me? Yeah, like what is this love bombing?
it's bombarding you with so much information that you're not able to think for yourself. Like information and attention. I'll tell you कि ऐसे for example यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉटल रखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है बट इट डजंट मैटर फॉर यू, राइट? आप यहाँ बिजी हो, यहाँ पर एक बंदर नाचना चालू कर जाता है, व्हाट विल हैपन टू योर इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल हैपन टू योर थॉट प्रोसेस? इट विल स्टार्ट टू शेक अप. वहाँ एक शेर आना चालू हो जाता है, पैनिक हो गया ना, आपका फोकस खिल गया आपसे, आपका फोकस पॉडकास्ट से खिल के शेर पे चला गया. क्यों? बिकॉज दैट इज बिग इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सर्वाइवल. सेम थिंग हैपन्स इन लव. you're talking to someone and now you're going to take your own sweet time to understand this person. आप आराम से 2-3 महीने लेना चाहते हो अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सन क्या एफर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है. बट व्हाट आई विल डू, आई विल हाईजैक योर ब्रेन. मैं आपको हज़ारों गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपको महीनों चेज़ कर रहा हूँ, इतना चेज़ कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है शायद इतना चेज़ कर रहा है तो सच में प्यार करता होगा तभी तो चेज़ कर रहा है, राइट? और मैं आपको बहुत महंगे गिफ्ट दे रहा हूँ, वेकेशंस पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेटर्स लिख रहा हूँ, दिन रात अपने काम को छोड़ के आपके पीछे भाग रहा हूँ. सो व्हाट एम आई डूइंग विथ यू? आई एम गिविंग यू सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच पॉइंट्स कि आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हट गया, हाईजैक कर लिया मैंने थ्रू इन्फॉर्मेशन. सो नाउ यूर थिंकिंग शायद इतना कुछ कर रहा है तो सही कर रहा होगा. बट द मोमेंट आई गेट इन टू दैट, द मोमेंट आई डू ऑल दोस थिंग्स एंड द मोमेंट यू से यस, he vanishes, right? he goes away. Because It's the chase. It's the chase. So what exactly the person is seeking at that point of time? The person is seeking chase. अब what does the women often confuse that with? उसे लग रहा है कि शायद ये अगर अभी इतना कर रहा है तो बाद में भी इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा करेगा फिर तो. बिकॉज सी लव का जो बेसिक बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है ना वो दोनों के लिए बहुत डिफरेंट है कि what exactly is the purpose behind it. तो men के लिए वो चीज़ चेज वाला चीज़ ज़्यादा उनको ड्राइव कर रहा है. So they are driving and they're running after the chase. And that is why I'm telling you it's more impulsive for the men. But are they chasing multiple women at the same time? They might be or maybe not as well. मतलब इतने, see, a lot of men who are chasing this are not even aware that they're doing that. Because like I mentioned कि they are not emotionally very capable or observant of what they are doing. तो वो आपको convince इस हद तक करा देंगे कि I am in purely in love with you because they believe that as well for themselves. पर जब कमिटमेंट की बात होती है देन दे स्टॉप बिलीविंग. तब रियलिटी आ गई ना, तो लॉजिक आ गया. सो अंडरस्टैंड दिस ना कि मैं इतना खुद बह चुका हूँ इस इमोशन में. आई वॉन्ट टू हैव दिस वुमन विथ मी. मैं खुद इतना इमोशनली बह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वोकैबुलरी इमोशन का, मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, मैं क्यों चेज कर रहा हूँ इस चीज़ को. और मैं खुद इतना बह चुका हूँ, मैं खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस भाग रहा हूँ उस चीज़ के पीछे. द मोमेंट आई गेट दैट थिंग, फिर मुझे रियलिटी हिट करी, मुझे तो चाहिए नहीं था. तो इट्स men are also not very aware of कि वो कर क्या रहे हैं, वो भाग रहे हैं. And this is not happens only with women, money as well. You would see people chasing after money, endless amount of money. क्या करना है पैसे के साथ? I don't know. बस कमाना है. क्यों कमाना है? बस कमाना है. तो वो चेज में आप अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, फैमिली सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. तो वो जहाँ चेज आ गया वहाँ पर इम्पल्सिविटी आ गई, मतलब वहाँ पर यू आर नॉट लॉजिकल. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग men are often more emotional than women in relationships. Okay. But that's the point. Now in the today's dating scene, a woman needs to be very, very conscious and take your own sweet time. आप अपना समय लो ऑब्जर्व करने का कि सच में वो इंसान का कंसिस्टेंसी है या नहीं है. हाँ. राइट. बिकॉज मैंने कितने केसेस में देखा, लोग men, I've seen men chasing women for 6 months, 1 year straight, 2 years straight, just to get that yes. और आप नोटिस को 2 साल 1 साल बहुत बड़ा नहीं होता है. Yes, for to date him. To date. Oh, ये अभी they are not even dating. हाँ, सिर्फ yes for dating because मेरा वर्थ डिपेंडेंट है ना. If I'm able to make sure that this beautiful woman is in love with me, तो मेरे वर्थ के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ना. Validation. तो मैं बस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ. The moment मुझे मिल गया फिर लॉजिकल दिमाग आ गया ना मेरा तो. And a lot of men are stuck in this particular race of chasing. तो ये चीज़ women को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि this is what is the truth of the today's dating, the modern dating, and unless until you're conscious of it, you'll keep on falling in this same track. So be observant, take your own sweet time, and start observing. ये बात मतलब मैं rule of thumb बोलता हूँ. Any person who is doing more than what is needed is not going to stay. Because सिंपल सी बात है ना कि एक सिंपल सा फंड है सस्टेनेबिलिटी, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में और एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते थे बचपन में. दिस रूल अप्लाइज विथ ह्यूमन बींग्स एज वेल एंड विथ इमोशंस एज वेल. कोई भी इमोशन सस्टेनेबल अगर नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन.
खुद के साथ आप देख लो ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी एक्साइटेड फील कर रहे हैं एक चीज़ को लेकर, उतनी जल्दी हमें एक्साइटेडमेंट खत्म हो जाएगी उस चीज़ को लेकर. तो वही तो चीज़ है यहाँ पे ना. हाउ कैन अ पर्सन बी मोर एक्साइटेड फॉर यू देन व्हाट इज नीडेड? हाँ, आप जानते भी नहीं हो. हम 2 दिन हुआ, आप क्या जानते हो उस इंसान के बारे में कि आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग टू डाई फॉर यू. इट्स अनसस्टेनेबल. मतलब नॉट सेइंग कि आप जानबूझ के कर रहे हो, बट मुझे ये समझ में आया कि आप केपेबल नहीं हो अपने इमोशंस को हैंडल करने के. And if you're not capable enough of handling your emotions, it definitely says one thing, that it's not going to last. Fair. But, mostly I hear my friends, a lot of girls say this, that men in dating are emotionally unavailable. But I want to ask you, are women also emotionally unavailable? 100%. दोनों होते हैं, both genders are emotionally unavailable at times. But also very important to understand that कि just because women are emotionally expressive or better expressive than men doesn't mean that emotionally available or intelligent. Emotional intelligence or available का definition ही होता है being aware about your emotions. Okay. Being aware about how you manage those emotions. Yeah. So no matter how good you are at your expressing your emotions, but if you still don't know how to handle them, you're still not available. Yeah. तो वो part is a different story altogether. But हाँ, ये बात especially in today's world, today's dating scene, a lot of people operate from the fear of rejection and the fear of heartbreak and the fear of abandonment. Yeah. Which makes them do a lot of things. और fear of commitment as well. तो अगर मेरे अंदर fear of commitment है तो मैं तो excited हूँगा जब तक चीज़ें दिख रही है, मज़े वाली चीज़. The moment it becomes real, and it happens from women's side as well as much as men's side, कि आप भी excited about the prospect of marriage and happiness and commitment and everything, but the moment it becomes true, you start also get shivers and panic. Yeah. And then you also back off. You find ways to screw it up. Yeah. And that happens from both the gender sides. But what are the main top 3 reasons for this commitment phobia? The very primary reason is seeing failed marriages in your childhood. Okay. And mostly from your parents. Okay. If as a child you have seen failed marriages, a lot of conflicts, a lot of fights, a lot of arguments, a lot of instability in marriage as a child, तो आपके लिए जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज और स्टेबिलिटी और कंपेनियनशिप वही तो हिल गया, सारा बेसिस हिल गया. तो जब आप, लेकिन आप इंसान हो, आपकी अपनी नीड है, तो आप नीड के पीछे जाते ज़रूर हो, बट जब वो नीड सामने आ जाती है बिल्कुल कमिटमेंट के फॉर्म में, एंड दैट इज़ वेर यू स्टार्ट टू थिंक कि व्हाट इफ द सेम थिंग दैट आई हैव लिव्ड थ्रू विल हैपन विथ मी एज वेल. So you start to get into that self-sabotage mode. And you start rejecting everything out of it. कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे अभी नहीं करना, 6 महीने बाद करूँगी, साल भर बाद करूँगी, 1 साल 1.5 साल बाद करूँगी, मुझे और टाइम चाहिए, I need more space, I need more time, I need to think about it. You're self-sabotaging all those things because of the fear of commitment that you had. And that's it's a very common thing because marriages, बहुत सारे इंडिया में जितने marriages exist कर रहे हैं, हम बहुत boast करते हैं इस चीज़ को कि हमारी कंट्री में डिवोर्स रेट्स इतने कम रहे हैं. But it has just because of the case कि किसी को courage नहीं था फाइट करने का. Correct. तो लेकिन that is the reason कि हमारे generation of people have seen a lot of dysfunctional marriages. Because they jumped into things without realizing That why. Is also and also from the parent side and as the wrong partner. Wrong partner, and also we have seen those things happening a lot in our parents' marriages as well. Yeah. A lot of people have seen that. So how would you say that, what is the distinction between healthy love and toxic love? See, love is always emotional. And मेरे definition में love एक सिर्फ एक biological emotional चीज़ है, nothing more, nothing less. Okay. I would say a relationship can be healthy or toxic. Okay. But when it comes to love, it's purely biological, and it does not have the power to define how your relationship is going to be like. Just because I'm in love with this particular person doesn't mean the person is going to be right for me. I'm just in love. It's a very biological thing. Yeah. दुनिया में हर इंसान को लव फील हो सकता है. Yeah. बट जस्ट बिकॉज मुझे प्यार हो गया इस इंसान से, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब ये इंसान भगवान बन चुका है, इंसान सही होने वाला है मेरे लिए. तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है कि आई एम इन लव वर्सेज इफ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हेल्दी और नॉट. So I need to observe more to understand to that point of time. That's amazing you brought it up, because I did want to touch upon this, that especially when we are in love and actually होता है ना, violin बज रहे हैं, everything is beautiful in the world. But that's actually, like you said, a biological reaction. Yes. Doesn't mean this person will be a long-term compatible yes. partner for life. Absolutely. So I wanted to ask you, like, logically, अगर we are in love with someone, so how do you find out that this is my person? Observe the person.
and take your Okay. own sweet time to observe the person. And observation means questions, communication. Observation means their behavior. Observation means their efforts. And observation means also their way of handling their emotions. सब कुछ ऑब्जर्व करो, बी इन दैट ऑब्जर्वेशन मोड एंड टेक योर टाइम टू डू दैट. हम जंप करते हैं बिकॉज यही हो, हमने इतनी मूवीज देखी हैं दुनिया में, इंडिया में, बॉलीवुड में स्पेशली, कि द मोमेंट यू इन लव, बस दिस इज इट. यही हाँ. एकमात्र पैरामीटर दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज लव, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन मूवीज. तो हम बस उसका वेट करते हैं, अच्छा प्यार हो गया मुझे इस इंसान से. बट प्यार होना कुछ नहीं कहता है, नथिंग, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग लाइक आई मेंशन्ड. तो जब आप प्यार में पड़ जाओगे ना, आप कितने भी समझदार, इंटेलिजेंट, लॉजिकल इंसान हो, यू आर गोइंग टू हैव द सेम रिएक्शन एज अ स्टूपिड पर्सन एज वेल. बिकॉज जो मेरे लिए लव है वो आपके लिए लव है, और वो मुझे भी उसी तरीके से ब्लाइंड करेगा जिस तरीके से आपको ब्लाइंड कर रहा है. तो इट डजंट डिस्टिंग्विश. तो लव इज गोइंग टू मेक यू ब्लाइंड नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर. तो मेक श्योर दैट यू गो इन टू द ऑब्जर्वेशन मोड बिफोर यू जंप इन टू द बैंड वैगन ऑफ लव. Okay. मतलब टेक योर ओन स्वीट टाइम टू गेट टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. आप Yeah. समय लो, बात करो, डेट करो, मिलो, बात करो, शेयर करो, डिस्कस करो, एंड गेट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाट इज रियली हैपनिंग बिफोर एग्जैक्टली जंपिंग ऑन टू दैट. बट उस पॉइंट पे सबसे बेसिक चीज़ आई थिंक स्टिल, अगर, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, हमें सबके पास बहुत समय भी नहीं होता है, बहुत समय में हमारे पास उतना एनर्जी भी नहीं होता है इतना एफर्ट लगाने का. तो बट ये चीज़ समझ के रखो ना, द ओनली थिंग दैट मेक्स अ रिलेशनशिप वर्क और हेल्दी इज द म्यूचुअल टेंडेंसी टू मेक एफर्ट्स फॉर ईच अदर. अच्छा. हम कंपैटिबिलिटी के पीछे पड़ जाते हैं कि वी नीड टू बी वेरी कंपैटिबल, शायद हम कंपैटिबल नहीं है, या यू नीड टू बी वेरी कम्युनिकेटिव, और आई नीड टू बी पुटिंग सो मच एफर्ट्स, यू नीड टू बी अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई नीड टू बी अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों का अपना 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 इंपॉर्टेंस है. बट वॉट इज दैट वन थिंग, वॉट इज दैट वन थिंग दैट डिफाइंस की रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड म्यूचुअल टेंडेंसी टू मेक एफर्ट्स फॉर ईच अदर. दैट इज इट. और कुछ मैटर ही नहीं करता है. अगर मैं अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करता हूँ ना, तो मेरा एफर्ट नेचुरली फ्लो करेगा. अगर मैं अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनके इमोशनल टर्बुलेंस मुझे बॉदर करेंगे और मैं उसको सॉल्व करने चाहूँगा. अगर मैं अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं नेचुरली एफर्ट करूँगा उनके लिए. अगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं हर्ट नहीं करना चाहूँगा उनको. एंड सेम गोस माय पार्टनर. बस यही ना. बाकी हम कंपैटिबिलिटी के जब पीछे पड़ जाते हैं ना, तो सिंपल सी बात है ना, एज अ मैन एंड अ वुमेन, आप छोड़ दो, आप कंपैटिबिलिटी 1000 ढूंढ लो, मैं आपको 1,00,000 डिफरेंसेस बता दूंगा. क्योंकि मैन एंड वुमेन में ही इतना बड़ा डिफरेंस है. Yeah. आप कितनी कंपैटिबिलिटी ढूंढोगे, True. राइट? तो कंपैटिबिलिटी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो चीज़ को, बट डू नॉट क्लिंग बाय दैट. अगर दूसरे इंसान में टेंडेंसी दिख रही है ना आपको कि वो बंदा सच में एफर्ट कर रहा है आपके लिए, जेन्युइन एफर्ट्स कर रहा है जो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म है, और रिस्पेक्ट कर रहा है आपके इंडिविजुअलिटी को, आई थिंक दैट इज इट. Amazing. Love it. थोड़ी आपने बात की थी fear of abandonment and rejection. So because हम relationships की बात कर रहे हैं and you know the interplay of two partners. So what are the attachment styles? I believe there are a few different types. Yes. And how do they interplay in a relationship? Right. So basically there are 4 attachment styles: secure, anxious, avoidant and disorganized. Okay. एंड इसका रोल बहुत बड़ा होता है हमारे बिहेवियर्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे एफर्ट्स करने की टेंडेंसी में, हमारे कम्युनिकेशन सब में निकल कर आता है. एंड जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, Can you tell us what is it? सो सिक्योर Yeah. अटैचमेंट स्टाइल इज समथिंग जहाँ पे आप बहुत ही कंफर्टेबल हो अपने पार्टनर के इवेंटफुल बीइंग से. तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. वो एंग्जाइटी क्रिएट नहीं कर रहा है कि इफ माई पार्टनर इज टॉकिंग टू समवन एल्स एंड कॉन्स्टेंटली डर का माहौल बना हुआ है, इफ माई पार्टनर इज गोइंग टू लीव मी और समथिंग लाइक दैट. तो एक सिक्योर बीइंग है, सिक्योर स्पेस है आपके लिए. एंड देन सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स आर ऑफन बिल्ट अप बाई प्लेसेस जहाँ पे बच्चों ने अपने पेरेंट्स में वो सिक्योर स्पेस देखा था. Okay. मतलब अगर एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट दे रहा हूँ ग्रो अप करने का, तो द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप इन अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. द सेकेंड वन इज एंशियस अटैचमेंट स्टाइल. एंशियस में क्या होता है, यूर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग. वॉट इफ आई डू दिस, वॉट इफ आई डू दैट, वॉट इफ उसने ऐसा कर दिया, तो वॉट इफ मैंने ऐसा कर दिया, तो वॉट इफ समथिंग गोज रॉन्ग. सो यूर कॉन्स्टेंटली प्लानिंग एंड एंटिसिपेटिंग. सो एंग्जाइटी का मतलब क्या है, यूर कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेटिंग, यूर कॉन्स्टेंटली प्लानिंग फॉर अनसर्टेनिटी. सो दैट इज वेयर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कम्स इन टू द पिक्चर. कि जब आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल प्रैक्टिस करते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली एक डर वाले माहौल में रहते हो कि मुझे छोड़ ना दे. एंड आपका वो कैसे, हाउ डज इट ऑफन फ्लो आउट? इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ टू मेनी क्वेश्चंस, टू मच क्लिंगीनेस, टू मेनी डाउट्स, टू मेनी इनसिक्योरिटीज.
थर्ड होता है अवॉइडेंट, ओके जहाँ पे उसमें भी एंग्जाइटी होती है, उसमें भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल। कि आप विड्रॉल रहते हो, कि जैसे एंग्शियस क्या कर रहा है, बहुत सवाल पूछ रहा है, अवॉइडेंट क्या करेगा, पीछे हट जाएगा डिफिकल्टीज में, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी नोटिस, एंड दिस इज व्हाट वी नोटिस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, कि अवॉइड मोस्ट ऑफ द मेन आर अवॉइडेंट्स। ओके कि आप मेन क्या होते हैं, काफ़ी बार अवॉइडेंट होते हैं बहुत सारे केसेस में, तो विमेन गेट्स क्लोजर टू टॉक कि बात करो बात करो बात करो, मुझे फील हो रहा है, एंड मेन सेज कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है, और अबैंडन कर देते हैं और आपको रिजेक्ट कर देते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि वो गैप बनना चालू हो जाता है उस प्रोसेस में। तो ये दो चीज़ें हैं, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस अवॉइडेंट में और लास्ट में डिसऑर्गेनाइज्ड, कि वहाँ पर इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट अगेन इट गोज टू एक्सट्रीम जहाँ पे वो भी वर्कआउट नहीं करता है। अच्छा, मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, राइट, एंड वो भी मतलब स्टेबिलिटी के साथ नहीं आता है। बट आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, anxious attachment style and avoidant attachment styles make up for a horrible partner. okay, Because see, I'm an anxious attachment style. So at every point of distress and every point of uncertainty, I would want you to give me some sort of assurance. And every time I do that, you're going back. मतलब मेरा डील करना स्ट्रेस को तरीका क्या है, और अंदर जाना और पूछना और सवाल पूछना और क्लिंग करना। आपका तरीका स्ट्रेस को डील करने का क्या, और पीछे हट जाना। सो इन द सेम स्ट्रेस यू आर रनिंग अवे और आई एम गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। कितना टॉर्चरस होगा दोनों के लिए ना। आपके लिए टॉर्चरस ये होगा कि यार मुझे शांति चाहिए, छोड़ दो मुझे पीछे, और मेरे लिए टॉर्चरस होगा कि मुझे इतना बॉदर कर रहा है, आप पीछे क्यों भाग रहे हो। तो दोनों को हर वक्त रिजेक्टेड ही फील हो रहा होता है। सो इट्स अ टॉर्चरस, इट्स अ वर्स्ट कॉम्बो। मोर देन anxious or avoidant एंग्शियस फिर भी ठीक है। अच्छा, आई वुड टेल यू व्हाई, बिकॉज एंग्शियस में क्या है ना कि दोनों पर्सन आर देयर फॉर ईच अदर। आई एम आल्सो क्लिंगी, यू आल्सो क्लिंगी, क्लिंगी फॉर ईच अदर, we'll cling together. वी क्लिंग टुगेदर। तो यस, प्रॉब्लम्स उसके अपने हैं, बट स्टिल वी आर बीइंग देयर फॉर ईच अदर इन सर्टेन वेज। मतलब उसकी भी अपने नेगेटिविटीज आती हैं ऑब्वियसली, बट उस फॉर्म में थोड़ा सिक्योर है। बट एंग्शियस अवॉइडेंट सबसे एक्सट्रीम फॉर्म्स बना देते हैं। Yeah. Okay, but अगर if somebody is anxious or avoidant, can they change their attachment style and become a secure person? The core does not change, but Okay. the core, it's very very difficult to change that core. But yes, you can be very very observant of that basic attachment style that you're carrying, and then you can work around being conscious of how it comes out in the form of your behavior, in your actions, your belief systems. Okay. And if it does not come out too impulsively and too extremely, तो और वो ट्रस्ट के साथ, मान लो अगर शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं होगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म, हम एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाता है, हम बहुत काम करते हैं, थेरेपी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो यस द सिक्योरिटी किक्स इन, बट वो सिक्योरिटी लाने में सालों लग जाते हैं। अच्छा, बिकॉज एक दिन का, मैं सोचो ना, 25-30 साल का एक आदत, कंडीशनिंग एक दिन में जाएगा नहीं, सालों लग जाते हैं उनको जाने में। बट इट्स डूएबल। ऐसी बात नहीं कि आप उसके साथ जी नहीं सकते हो, यू कैन डेफिनेटली लिव विद दैट, एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद दैट। You can still be in a healthy relationship. Absolutely. So that brings me to my next question कि हम relationships में same emotional patterns क्यों repeat करते रहते हैं? Because it is familiar. Our brain craves for security in everything. Okay. हम सब क्या सीख करते हैं हमेशा? Everything, every human being on this earth craves this one important thing, that is security. But even if the person is treating me badly. See, same thing. वही बात की ना कि security is much much better for our brain than getting to a place जहाँ पर हम नई जगह जाने वाले और uncertainty ज़्यादा हो. So security is bigger than uncertainty. Okay. Which means कि अगर मैं केव में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे चींटियाँ भी है, क्रैप्स भी है, मुझे काट रहे रोज़, बट मैं जिंदा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, और आप मुझे आकर बोलते हो कि ये उस जंगल के उस पार चलो, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत पेड़ है, बहुत फल है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, लेकिन उस रास्ते में जो हमें जाना पड़ेगा ना, उस रास्ते में शेर है और वुल्व्स एंड दिस एंड दैट है, तो मैं बोलूँगा छोड़ यार, यहाँ पर मेरा सेफ्टी है। अच्छा। बिकॉज मेरे घर बना हुआ है, व्हाट इफ आई गेट किल्ड इन द बिटवीन ट्रैवल के, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज वाई, दिस इज फेमिलियर फॉर मी। सो नाउ दिस पेन इज ऑल्सो फेमिलियर. The pain of getting stung by bees and ant every day is familiar for me. So same thing goes for unhealthy relationships as well. So if I'm familiar towards a particular type of relationships, the pain is also familiar. So what would I choose? A familiar pain or an unfamiliar uncertainty? So I'll always choose a familiar pain because वहाँ पे chance है, सही होगा या गलत होगा. यहाँ तो पेन है बट पता है डील कैसे करेंगे, डील कर लेंगे इवेंचुअली ना.
एंड दैट्स द थिंग अबाउट इट, आवर ब्रेन डज नॉट केयर वन बिट अबाउट द गुड और द बैड, कि आप ग्रो करो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में जाओ. व्हाई डज द ब्रेन केयर अबाउट दैट? It just cares about survival. इट केयर्स अबाउट सर्वाइवल, इट केयर्स अबाउट सिक्योरिटी. Yeah. तो सिक्योरिटी उसको फेमिलियर से ही मिलेगी. तो क्या हम ये ओवरराइड नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. आई थिंक अवेयरनेस अगेन, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग. ये सारी चीज़ों में बात करें, सिक्योरिटी की, सर्वाइवल की, ये सारा हमारा एक लिम्बिक पार्ट ऑफ द ब्रेन की जो बात करते हैं ना, एक एमिगडाला, द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सारा पार्ट कर रहा होता है इस चीज़ को, कि इट टेक्स चार्ज ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स. Yeah, the primitive brain. हाँ, द प्रिमिटिव ब्रेन. बट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द लॉजिकल पार्ट, जहाँ सारी डिसीजंस होते हैं, वो पार्ट इज स्टिल कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एवरी डे. Yeah. The moment we get out of the survival mindset, we let this thing take more actions, तब वहाँ से चीज़ें बेटर होनी चालू होती है. तो उससे निकलना ज़रूरी है. वो निकलेंगे कैसे? निकलते उससे by taking more charge of our traumas, by understanding what our traumas have been trying to tell us, by understanding and working on the traumas, because each one of us have been through certain share of traumas and experiences and things, be it बचपन में, या be it through failed relationships, or be it through situations, or be it through lack of confidence, whatever, Yeah. various reasons. जब तक उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी कहानियों को डिफाइन करता रहता है एक तरीके हम से. सेम इंसान को अट्रैक्ट करते रहेंगे. राइट. तो उस पेन को, उन ट्रॉमास को, उन चीज़ों को डील करना, प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन वंस यू डू दैट, तो आप अपने पैटर्न्स में एटलीस्ट फेमिलियर होना चालू करते हो, क्योंकि आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस एक्साइटमेंट, बट दिस इज नॉट इट. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन दीज डेज ना, कि लाइक द थिंग आई मेंशन अबाउट लव बॉम्बिंग, कि ऑल्दो यू नो कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, बट द आइडिया ऑफ समवन डूइंग सो मच फॉर यू सो एक्साइटिंग. Yeah. इट्स सो ब्यूटिफुल कि मतलब आई एम सो वर्दी, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ग्रेट. मतलब सडनली आप चांद पे पहुंच गए क्यों? आपको इतना अच्छा फील कराया जा रहा है उस इंसान के लिए. तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं छोड़ो यार, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एटलीस्ट फील हो रहा है अच्छा. अब बाद में क्या पता वो भी ना फील हो, तो ये तो एटलीस्ट फील कर ले. बट वही बात है कि जब हम चांद पे चढ़ेंगे तो चांद से नीचे भी गिरेंगे. तो वी नीड टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर थिंग आउट, कि जो जितना बैलेंस्ड चीज़ होती है वो उतना लॉन्ग लास्टिंग होती है. Yeah. Extremities often do not last. Interesting. Now I want to the harsh reality, cheating and breakups, ending of relationships पे थोड़ा touch upon करना चाहती हूँ. तो first of all, cheating. Again, is this true or is this a myth that mostly men cheat and women don't cheat as often? In terms of physical intimacy, yes, men often cheat more. In terms of emotional intimacy, women cheat more than men. Why? सबसे बेसिक क्रेविंग क्या है? What does a man crave for? सबसे बेसिक चीज़ जो अट्रैक्ट करता है फॉर अ मैन इज अ लुक्स, इज अ फिजिकल इंटिमेसी. दैट इज वॉट इज ड्राइविंग मी एज अ मैन. एंड what is that a woman craves? It's the connection. Women के लिए सबसे बड़ी क्रेविंग क्या है? कनेक्शन है. कनेक्शन कैसे आएगा? इमोशनल इंटिमेसी से आएगा. एक दूसरे को जान कर आएगा, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करके आएगा. तो वुमेन के लिए हमेशा सबसे बड़ी अट्रैक्टिव फीचर होता है इमोशनल इंटिमेसी. Okay. और मेन के लिए वो अट्रैक्टिव फीचर होता है वो लुक्स एंड वो बॉडी एंड दिस एंड दैट, वो इंटिमेसी. तो कहीं ना कहीं आप सोचो, अगर एज अ वुमेन लेट्स अज्यूम यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एंड एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड डिसेंट, लेकिन आपको वो इमोशनल इंटिमेसी प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है. मतलब है ही नहीं, आप यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आप अपनी दिल की बात नहीं कर पा रहे हो. सो इवन तो ऑन पेपर इट इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप. लाइक पीपल विल से कि देखो इतना अच्छा लड़का है, इतने पैसे कमाता है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छे तुम्हें गिफ्ट्स देता है, बट आप तो यू आर नॉट फीलिंग लाइक योर सेल्फ. तो वॉट विल यू डू? यू विल ड्रिफ्ट अपार्ट. यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दैट वेज ऑफ इमोशनल इंटिमेसी विद समवन एल्स, be it through family, be it through friends, or be it through another man. It might happen, and that is where women cheat. Yeah. Men, where do men cheat? अब men के लिए सबसे बड़ा गैप कहाँ पर आता है? Like I mentioned कि men के लिए power, authority, control, that drives them. अब अगर चीज़ें रिलेशनशिप्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, फाइट्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, तो मेन का जो वेरी बेसिक एसेंस है ऑफ फीलिंग अथॉरिटिव, ऑफ फीलिंग पावरफुल, ऑफ फीलिंग लाइक आई एम द प्रोटेक्टर एंड द प्रोवाइडर, अगर वो छिन जाए मुझसे कि माई वाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, माई वाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली शाउटिंग एट मी, माई वाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली पुलिंग मी डाउन, तो मेरे लिए तो वो छिन गया मुझसे ना. तो मेरे लिए अट्रैक्शन कम हो गया मेरे पार्टनर से, तो मेरा चांस बढ़ जाएगा. नॉट जस्टिफाइंग ईदर ऑफ दोज कि वो सही है या गलत है, दोनों गलत है फॉर दैट मैटर. द बेस्ट वे इज टू हैंडल एंड टू टॉक. वी शुड बी मैच्योर इनफ एंड एडल्ट इनफ टू टॉक एंड कम्युनिकेट दोज डिफरेंसेज. नहीं हो रहा तो साइड हो जाओ, बेटर वही रहता है. बट अगेन लाइक यू मेंशन हार्श रियलिटी, नॉट एवरीवन हैज द करेज टू डू दैट ईदर. कम्युनिकेट करने में भी करेज है, बाहर निकलने में तो बहुत ज़्यादा करेज है, राइट. तो पीपल फाइंड अदर एस्केप्स, चीटिंग.
But then, should you ever accept a cheating partner back or no? Depends on person to person. Ideally, subjectively बोलना चाहिए no, but I would still say कि depends on person to person because हर एक केस डिफरेंट होता है, हर एक पॉइंट अलग होता है. एंड अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होप्स एंड पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं हाँ. कि इट इज़ नेवर एवर गोइंग टू हैपन अगेन, एंड आपको लग रहा है कि इट वॉज मे बी अ मैटर ऑफ मिस्टेक और सिचुएशन, शायद हमारे बीच में चीज़ें इतनी अगली हो गई थी, वट एवर रीज़न, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो फिर भी यस, हाँ. बट 90% चांस है कि नहीं होता है बेटर. Okay. इफ यू हैव गॉन दैट पाथ, वेरी वेरी लो चांसेस कि आप सच में वापस रिट्रैक्ट कर सकोगे. एंड मेरे को तो नहीं समझ आता फ्रॉम द आउटसाइड, बट नो जजमेंट्स, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मैरिजेस इज बिकमिंग वेरी ओपन. First of all, what are open marriages and why are people opting for open marriages? Open marriages ki both partners are open to do whatever they want and be sexually intimate with anyone they want. Why are they say primitively common यहाँ पर आज के दिन में? Because no one wants to limit themselves. Okay. People say कि life is one, एक जिंदगी है, क्यों हम खुद को लिमिट करें? But people forget this thing as well कि it's not about one जिंदगी or two जिंदगी, it's about the stability that matters. Yeah. And Yeah. like I mentioned this one thing कि anxiety constantly feeds on uncertainty. Be in a marriage जहाँ पे आप हर दिन uncertain हो कि वो मेरा पार्टनर है या नहीं है. Yeah. It Yeah. kills you. Yeah. It kills you slowly. Yeah. And people often again jump to that one particular thing of finding the short-term pleasure over the long-term reward Yeah. of commitment, because commitment is a long-term thing, but it's the most joyful thing ever. Because जो commitment आपको security provide करता है, जो commitment आपको safety provide करता है, वो दुनिया में कोई pleasure provide नहीं कर सकता. Yeah. And the moment you start to feel safe, everything changes. You change as a person. हाँ. You grow as a person. Yeah. But the moment you are constantly this and that, आज ये है कल वो है, और सिक्योरिटी खुद अपने रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप बस इधर से उधर भाग ही रहे हो. आपको स्टेबिलिटी, स्पेस, ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा है. किसी के साथ नहीं मिलेगी. किसी के साथ नहीं मिलेगा. आप भागते रहो, जिंदगी भर भागते रहो. Because we're talking about marriages not working out, बहुत important question है that what is the impact on children that see their parents in an unhealthy marriage? राइट. बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो स्टेबिलिटी. दैट्स वॉट दे स्ट्राइव ऑन एंड दैट इज हाउ दे ग्रो. Okay. अगर बच्चों को स्टेबिलिटी दिखती है, सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन अ बेटर वे, एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक एसेंस ऑफ एनी पर्सनस ग्रोथ. तो वो स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी जब पेरेंट्स का जो सबसे बेसिस रिएक्टिविटी है, बेसिस मैरिज है, वो अगर सेफ है तो उनको एक सेफ्टी मिलना चालू होता है दुनिया एक्सप्लोर करने का. अगर वही गैप मिल गया, अगर वही चीज़ सही नहीं है, मैरिज, पेरेंट्स का मैरिज सही नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे फाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे के दिमाग में एक सिक्योरिटी को बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिला. वाई इज दैट? बिकॉज आप सोचोगे कि बच्चों का ही फर्क पड़ता है, तो हम लड़ रहे हैं ना, बच्चों को क्या जा रहा है उससे. बट And they're too young to understand. बट प्रॉब्लम क्या है ना कि बच्चे के लिए अ चाइल्ड इज इंस्टिंक्टिवली एंड बायोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि मेरे जो नीड्स है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो मेरे पेरेंट्स प्रोवाइड करने वाले. एंड इफ माई पेरेंट्स आर ऑक्यूपाइड इन फाइटिंग विद ईच अदर, तो मेरे नीड्स कौन फुलफिल करेगा? एंड मेरे नीड्स फुलफिल होने के लिए मेरे माँ बाप को साथ में रहना और साथ में अच्छा रहना इज़ बहुत ज़रूरी. तो अगर वो अच्छे हैं तो मैं सिक्योर फील करूँगा, अगर वो अच्छे नहीं है तो मैं पैनिक करूँगा. तो सबसे बड़ा गैप यहाँ पर आता है कि कॉन्फिडेंस टेक्स अ हिट. यू गेट इन टू अ जोन ऑफ अबैंडनमेंट, यू गेट इन टू अ जोन ऑफ कमिटमेंट फोबिक, सो मेनी अदर थिंग्स हैपन देयर, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली डर में हो ना कि समथिंग माइट गो ऑफ, समथिंग माइट हैपन. इसमें चिल्ड्रन इवेंचुअली बिकम अवॉइडेंट और एंशियस इन जनरल इन अटैचमेंट स्टाइल. सो वो पार्ट है नेसेसरली. एंड काफ़ी बार लोग ये बात बोलते हैं ना कि इट्स आई जस्ट स्टे इन माई मैरिज बिकॉज माई किड्स, बच्चों के कारण मुझे रहना पड़ रहा है, आई कैन नॉट टेक डिवोर्स. बट a lot of research says this thing कि it's better to stay independently rather than be in an unhealthy relationship, and that is better for the kids. Yeah. Because at least बच्चों को हर दिन इस क्वेश्चन नहीं करना पड़ रहा ना कि what is going to happen. वो uncertainty kills the child curiosity and confidence. तो आप एक पेरेंट ही सिर्फ ध्यान दे रहे हो बच्चे का, बट एटलीस्ट वो सेफ है, सिक्योर स्पेस है. दो पेरेंट्स साथ रह के लड़ रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका. इट्स बेटर टू बी सिंगली इंडिपेंडेंट, divorced rather than being in an unhealthy marriage. I love that you mentioned that, because still
even in 2025 there's so much stigma Yeah. around divorce. So very that's, and especially because when a child is involved. So thank you for bringing that up. But now, because we're talking about unhealthy relationships, and of course now people one-sided ho ya mutual ho, people of course break up or end marriages. But what I want to ask you is that do men and women process breakups differently? Absolutely, yes. They do differently. And notice करते होगे ना आप कि initially the women goes into a zone जहाँ पर they are very sad, very low. Yeah. They're talking to people around it. And men generally often are very ignorant कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, everything is good. अब Yeah. पार्टी करना है, अब तो मज़े करना है, अब तो सिंगल हूँ मैं, अब तो enjoy करूँगा, I'll do hookups and whatever. So उस point पे क्या हो रहा है ना कि this is how the men, and this is a very interesting thing about their personalities as well. कि women के लिए क्या है कि women process their emotions by talking, by sharing, and they're more in tune with the emotions. तो जब ऐसा कुछ होता है, breakup होता है, तो they are able to recognize it well. कि अच्छा ये एक loss है, this is a grief, and it's hit me. So they are able to pick it up and then process it as soon as they can, obviously, because वो कर रहे हैं उस process में. Men के लिए बहुत लेट आ रहा है वो चीज़. 1 महीने 2 महीने तक वो एक अलग जोन में रहेंगे कि अब तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, बिकॉज इग्नोर इनको पता ही नहीं कि हैंडल कैसे करना अपने इमोशन को. बट एवेंचुअली द टाइम कैचेज अप. एंड ये नोटिस करते होगे आप कि जब तक वुमेन मूव ऑन कर जाते हैं तब तक मेन को याद आता है, एंड देन उसके बाद वापस आते हो Okay. कि आई वॉज सो मच इन लव विथ यू एंड आई वॉन्टेड टू बी विथ यू, सॉरी आई कुड नॉट मेक इट वर्क. एंड दिस इज वॉट हैपन्स इन अ लॉट ऑफ केसेस कि जब तक वुमेन मूव ऑन करके तब तक मेन वापस आ रहा है कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ, बिकॉज उनका प्रोसेसिंग इतना लेट हो रहा था. हाँ, they were in denial. दे वेर इन डिनाइल, कंप्लीट डिनाइल. तो वो चीज़ है इमोशनल प्रोसेसिंग का. बट डील सेम करना चाहिए दोनों को, प्रोसेस करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, बात करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए. बट इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू दिस वन थिंग कि मेन के पास स्पेस भी नहीं है. एज अ मैन अगर मेरा ब्रेकअप होता है तो अगर मैं अपने दोस्तों के पास रोने जाऊँ या बोलने जाऊँ कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, फीलिंग वेरी सैड, मुझे क्या एक ही आंसर मिलेगा, चलो दारू पीने चलते. विमेन के लिए क्या होगा, यू हैव योर पीपल अराउंड यू, फ्रेंड्स अराउंड यू जो बात सुनेंगे आपके. Your girlfriends. Your girlfriends they'll allow you to talk, share, cry as well. They'll do things for you, they'll make you feel cozy and comfortable. As a man मुझे तो बस बोलेगा चलो दारू पीने चलते हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं, चलो ट्रैवल करने चलते हैं. सो उनको भी नहीं पता कैसे डील करना है, वो मेरा कैसे डील करेंगे इमोशन को. सो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है अपने इमोशनल प्रोसेस करने का आफ्टर डिफिकल्ट इवेंट लाइक दैट. तो दैट इज वेयर प्रोसेसिंग चेंजेस ऑब्वियसली. आपने टच अप किया फीमेल सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप्स. सो हाउ इम्पोर्टेंट आर फीमेल फ्रेंडशिप्स? इट्स इम्पॉर्टेंट. आई मीन बोथ आर, दोनों का अपना अपना रोल एंड प्रायोरिटी है, मेल फ्रेंडशिप्स एज वेल एज फीमेल फ्रेंडशिप्स. बट इन जनरल फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मच मोर इन ट्यून विद इमोशंस कंपेयर टू मैन. एज अ मैन अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं ट्रैवल के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ, सब कुछ के बारे में बात कर सकता हूँ विदाउट अपार्ट फ्रॉम माई इमोशंस. अब मैं अपनी इमोशंस की बात नहीं कर सकता. टू मैन टॉक जो काफ़ी बार आजकल चलते भी बहुत सारे बात भी हुई थी इन डिफरेंट पॉडकास्ट. आई हर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग कि मैन डू नॉट नीड थेरेपी. हमें एज अ मैन थेरेपी की जरूरत नहीं होती बिकॉज थेरेपी इज़ नॉट डिजाइंड फॉर मैन. एंड उनको चाहिए बॉय ग्रुप, उनको चाहिए बॉयज़ के साथ हैंग आउट करना, उनको चाहिए बॉयज़ के साथ पार्टी करना, बॉय के साथ बकचोदी करना. एंड दिस इज वॉट दे से अबाउट कि उनके लिए वही सिर्फ वही मैटर करता है. बट दैट्स द थिंग कि दैट इज द ओनली रीजन यू नीड मोर थेरेपी. बॉयज़ एंड मेन नीड मोर थेरेपी फॉर दैट मैटर बिकॉज आपको चलो मेन के साथ वो एक रिलैक्सेशन, एक जॉयफुल, एक एक्साइटिंग चीज़ मिल रहा है. एंड ग्रेट, इट हैज़ इज वन वंडरफुल स्पेस बिकॉज दैट डिफाइंस क्लोजर टू योर पर्पस, सोसाइटी एंड फीलिंग एंड फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग अराउंड इट. अच्छी बात है, कीप दैट, मेंटेन दैट. But as a man, you also need to learn how to understand and be aware of your emotions. Right. So I would say कि male friendships generally shallow होती है compared to female friendships. And that is the only reason it stays for very long. Yeah. Male friendship मेरे क्लास 6th में फ्रेंडशिप हुई थी, मेरे अब तक चल रहा है बिकॉज हम बात ही नहीं करते. हाँ. Oh, interesting. अब मैं क्या बात करूँ कि हाँ भाई इंडिया मैच जीत गई, हाँ इंडिया Yeah, मैच जीत maybe that's why as a woman, there are people my girlfriends that I don't relate to anymore. And I would feel like, is something wrong? But that's, I think, just because we're in different phases of life. Yes. And ये भी बोलते हैं ना काफ़ी बार कि चलो मैन तो कभी भी किसी को फ्रेंड बना लेता है. मैं एक चाय के टपरी पे वहाँ पर किसी को दोस्त बना लिया, यारों का यार काइंड ऑफ थिंग. बट इज दैट एक्चुअली फ्रेंडशिप? दैट्स अ थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड यार. इट्स नॉट फ्रेंडशिप ना. You're good at talking, great, wonderful. You're good at having those
conversations, wonderful. I mean, this is a good quality to have, Yeah. skill to have. Yeah. But I would not call that friendship. Yeah. Friendship should be an innate thing जहाँ पे आप you can be yourself. Yeah. True. You allow yourself to grow in certain areas Yeah. which you would not normally. It's like I have 2-3 girlfriends and they know who they are. Like I can call them up crying, sobbing at 6 a.m. and be like, this is what I'm feeling. And instantly they'll be there to help me process it, to give me an unbiased opinion. Yes. And then I just feel lighter instantly. Yes. And this is also probably the reason that women friendships often last smaller than men. अब किसी भी चीज़ में जहाँ इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं. Correct. आप अपनी इमोशंस ही इन्वॉल्व ना करो तो वो तो अप ही चलता रहेगा ना. देयर इज नो एंड टू दैट एंड दैट इज व्हाट मेल फ्रेंडशिप ऑल अबाउट. True. इन मेल फ्रेंडशिप्स हम इमोशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं. Yeah. हम बात करें क्रिकेट मैच की, हम बात करें पार्टी की, हम बात करें ट्रैवल की. वेयर आर माई इमोशंस इन्वॉल्व. Yeah. जब इमोशंस ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम एक दूसरे को हर्ट ही नहीं कर रहे होंगे कभी ना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली. डीपर लेवल पे आप अपने रॉ ऑथेंटिक सेल्फ पे गए ही नहीं हो, राइट. तो वो तो चलेगा, दैट विल गो ऑन फॉर इटर्निटी. Yeah. But that is not really friendship according to me. Now that we're coming towards the end of the conversation, Shivam, मैं चाहती हूँ that for everybody listening in, if you can share one daily, very easy, practical tool we can incorporate in our life to start regulating our emotions better. Right. This is something that I talk about a lot, is that कि अगर आप moderately busy इंसान हो Okay. तो एटलीस्ट दिन में 15 मिनट खुद के लिए निकालो. और अगर आप बहुत बिजी इंसान हो तो दिन में एटलीस्ट आधे घंटे खुद के लिए निकालो. बिकॉज हम इस दुनिया में बंध चुके हैं ना जहाँ पे इट्स जस्ट चेज एंड चेज एंड चेज. एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी चेज और सक्सेस चेज और करियर चेज. इवन टेकिंग आउट इंस्टाग्राम एंड स्क्रोलिंग इज ऑल्सो चेज बिकॉज वी आर चेजिंग दैट फीलिंग ऑफ हाई आफ्टर वी स्क्रोल इंस्टाग्राम. डोपामिन किक. हर कुछ में चीज़ है. थोड़ा भी सैड फील हुआ, अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर लिया. थोड़ा एंक्शियस फील हुआ, जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लिया. थोड़ा डिप्रेस्ड फील हुआ, मिंत्रा से कुछ ऑर्डर कर लिया. तो मेरे पास कितना एस्केप है ना अपनी इमोशंस को लेकर. एवरी इमोशन हैज़ एन एस्केप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट नाउ, राइट. तो इस एस्केप की दुनिया में, इस चेज की दुनिया में अपनी फीलिंग्स कहाँ हैं, अपनी इमोशंस कहाँ हैं. दैट कैन ओनली हैपन इफ यू गिव सम टाइम फॉर योर सेल्फ. एंड दैट कम्स विथ वेरी स्लाइटेस्ट ऑफ द हॉबीज. लाइक हैव समथिंग फॉर योर सेल्फ. मतलब मैं जानता हूँ इस बात को कि सबके पास समय नहीं है, बट एक चीज़ मैं हमेशा खुद भी प्रीच करता हूँ, चाहता हूँ कि आई वुड वांट कि अगर लोग कर पाए, कुक फॉर योरसेल्फ. ओके. I mean, cooking is one of the activities where you're indulged in process. You're chopping the vegetables. You're in the present. You're in the present. You're chopping the vegetables, and then you're creating masalas, and then you're sauteing and doing everything around it, and then you're creating a dish. Pure presence. Time भी लगता है. आधा घंटा 1 घंटा निकल गया. एंड वो आप सरेंडर कर रहे हो काम पे, एक प्रेजेंट एक्टिविटी पे, जहाँ पे आपका इंस्टाग्राम रील नहीं चल रहा है, जहाँ पे आप करियर का नहीं सोच रहे हो. यू आर डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क. और गो आउट फॉर वॉक्स एवरी डे. आधा घंटा निकालो दिन में वॉक पे जाने के लिए, जहाँ पे शांति में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम. जिम का अपना रोल है, बिकॉज जिम में भी आप इन्फॉर्मेशन ही से सरेंडर हो रहे हो. इतनी लाउड म्यूजिक चल रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हो, पंप कर रहे हो, and it's high intensity. Walk is more mindful. A walk is more calm, relaxed, and more than the physical benefits, I'm talking about the mental benefits here. Yeah. It calms you down, it soothes your body. And the moment it soothes you, you start finding solutions to the thing जो आपको दिमाग में बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था. आप देखते हो कि जब हम वॉक पे निकलते हैं तो पहले इनिशियली बहुत सारे chaos के साथ बाहर निकलते हैं. But by the end of it, we feel lighter and relaxed and calm and composed. Yeah. That's what a walk does. So I think walking, cooking, spending time with family, small hobbies, समय नहीं लोगों के पास, बट ये चीज़ें होनी चाहिए सबके लाइफ में हर दिन करने को, ताकि लाइफ का एक प्रोसेसिंग का जो डेली एस्पेक्ट है ना वो हर दिन होता रहे. बिकॉज प्रोसेसिंग इज नॉट अ टास्क कि आप एक हफ्ते में 1 दिन उठा के कर रहे हो. प्रोसेसिंग हैज़ टू हैपन एवरी डे. इनफैक्ट जितना बिजी दिन उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है. इनफैक्ट लोग उल्टा करते हैं, जितना बिजी दिन उतना और भागते. कि अब तो बिजी चला गया ना दिन, अब मुझे सैटरडे संडे को और पार्टी करना है, कि मैं 5 दिन वो कर रहा हूँ, सैटरडे संडे को पार्टी करना है. तो आपने वो प्रोसेसिंग का जो 1-2 दिन मिला था वो भी छीन लिया खुद से. राइट. आई थिंक दिस इज अ सिन ऑफ द busy world that we're living in. Okay. But we need time for ourselves so that we're able to deal with ourselves better, because it catches up. If it is not catching up mentally, it will catch up physically in the form of manifestations, illnesses, बीमारी, 1000 बीमारी लग रही लोगों को. हम जब बात करते हैं ना कि इतने अचानक से सडनली कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं लोगों के साथ,
इतनी यंग लोगों की हो रही है, लाइफस्टाइल भी तो देखो आप लोगों की, हाउ सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल, हम कुछ नहीं कर रहे आज की दुनिया में, सिर्फ भाग रहे, इमोशंस का कोई हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है, फिजिकली भी खाना तो ऑलरेडी हम आधा खराब ही खा रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमें, मेंटली भी हम खुद को फीड करे जा रहे हैं विद लॉट ऑफ कंपैरिजन, लॉट ऑफ फोमो, लॉट ऑफ दिस एंड दैट, देयर इज नो सेफ स्पेस फॉर योर बॉडी एज वेल टू सर्वाइव, तो ऑब्वियसली द बॉडी विल गिव अप। एंड यही पार्ट है कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड वर्क अराउंड ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपकी लाइफ फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे थोड़ी हेल्दी होनी चालू हो। Amazing. That brings me to the end of the podcast. Thank you, Shivam. I'm sure there are so many takeaways, such practical tips that it's going to help everybody who tuned in. So a little tradition on the Sangam project. I always curate one big question for my guest. So आपसे मुझे पूछना था that what is one emotion you feel we all need to understand better and why? I think it will be shame, because very often we confuse shame with guilt. But we need to understand this thing. Guilt is actually about that thing and shame is about yourself. Okay. For example, I did something bad today. मैं चल रहा हूँ, मैं गिर जाता हूँ यहाँ पे, और मुझे गिल्टी फील होता है कि यार गिर क्यों गया, तो मैं गिल्टी फील को ना, गिल्टी क्या कहेगा मुझे, गिल्ट क्या कहेगा मुझे कि मैं गिर गया और मुझे ऐसे नहीं चलना है वापस। शेम क्या कहेगा, यू सच अ स्टूपिड पर्सन फॉर फॉलिंग। Yeah. And very often, more than often, we are feeling ashamed of ourselves. मैं फेल कर गया, तो मैं फेल किया मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं फेलियर हूँ। True. रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, मैं ये नहीं बोलूँगा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, मैं बोलूँगा कि आई एम अनवर्दी। सो आई मेक इट ऑल अबाउट माई सेल्फ, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द मोमेंट वी मेक इट ऑल अबाउट आवर सेल्स, इट इज़ द मोस्ट होपलेस थिंग एवर, बिकॉज इफ इट इज़ ऑल अबाउट यू तो होप भी नहीं है जिंदगी में ना। And this is something we do that right now. We take things so personally. And this is one of the most important art to learn. Do not take anything personally. Beautiful. दुनिया में हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। Yeah. आप एक साइड कैरेक्टर ही हो. That is a reality. Even in the closest of the relationships, you are the side character. All the world's a stage. Absolutely. And आप साइड कैरेक्टर हो, तो जो दूसरा इंसान जिस भी एक्सट्रीमिटी के साथ रिएक्ट कर रहा है, that is probably more to do with them and less to do with you. वो इंसान ओवरटेक करके आपको जा रहा है, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, उसको अपनी जल्दी है या उसको अपनी इनसिक्योरिटी या उसकी अपनी इम्पल्सिविटी, इट्स हार्ड टू डू विथ यू। द मोमेंट यू रिएक्ट देयर, यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ। द मोमेंट यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ, यू रिएक्ट, यू गेट इम्पल्सिव, एंड यू ब्रिंग इन मोर पेन एंड मोर सॉरो इंटरनली। I love this. I think shame versus guilt, this has to be my best big answer till today on the podcast. And thank you so much, Shivam. Thank you. Thank you so much for having me.